So let me share the screen first. So can you see my screen, please? So yesterday, I have told you that we are going to see about the cardinal points of an optical system. Up till now, you are familiar with the definition of optical system. Am I correct? That optical system means here, यहाँ के केस में optical system से मुराद क्या? Lens, isn't it? Lens के ऊपर light incident हुई, लाइट के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस ये टोटल मिला के क्या कहलाया पूरा ये ऑप्टिकल सिस्टम, isn't it? Now the next important article that we are going to consider, that when the optical system is there, to find the focal length of the lens, to find the focal length of the combination of the lens, we want the object distance, we need of image distance, and therefore with the help of this object and image distances, the focal length of the combination of the lens, focal length of a thick lens is to be determined. But when the lens is thin lens, that means when the thickness of the lens is very small, then at that time to measure the object distance and to measure the image distance, it is easy. But every time it is not necessary that the lens which we are using in the system, it is a thin lens. Many times lens may be a very thick, or sometimes instead of using the one lens, combination of 2 and 3 lenses are used. So at that time, to obtain the focal length of that thick lens, to obtain the focal length of that combination of the 2-3 lenses, it is to be determined by measuring the object distance and image distance. And to measure the object distance and image distance, it becomes very difficult because there is no optical center at all. At that time, to determine the optical center, यानी कहाँ से लेना? एक thin lens रही तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस निकालना आसान, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना आसान. लेकिन अगर लेंस बड़ी है, उस वक्त ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे दिखते, इमेज भी दिखती और सब मामला धुंधला धुंधला रहता. उस वक्त ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालना, मेजर करना, प्रैक्टिकली उसको गिनना बहुत मुश्किल है, टेडियस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लेगी और बहुत ज्यादा बारीकी से प्रिकॉशन से लेना पड़ेगा. लिहाजा आपकी इस डिफिकल्टी को दूर करने के वास्ते, ये टेडियसनेस हटाने के वास्ते, ये टाइम कंज्यूमिंग को जो है तो टाइम सेविंग करने के वास्ते गॉस नामी साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया आपको दिया. अकॉर्डिंग टू द गॉस, if the position of the few points which are present on the optical axis of the or present on the principal axis of the optical system are called as the cardinal points are to be known, then it has become very easy to distance measure the object distance and image distance. क्या बोल रहा गॉस कि 4 पॉइंट्स की पोजीशन अगर आपको मालूम है ऑप्टिकल सेंटर में, तो फिर आपको इमेज डिस्टेंस देना और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देना वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें बड़ी आपके लिए इजी हो जाएगी और यू कैन डिटरमिन. तो ये जो 6 पॉइंट्स का मजमुआ है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम के कहां पर रहते, कहां पर वकू है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. ये 6 पॉइंट का मजमुआ क्या नाम से पुकारा जाएगा? कार्डिनल. बोलते रहिएगा एक एक, कोई तो भी म्यूट करके. कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम. ऑप्टिकल सिस्टम. समझ में आ गई बात? अगर आपको डेफिनेशन पूछे या आपको इसमें का एमसीक्यू कैसा रह सकता? टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन ए ऑप्टिकल सिस्टम आर डैश 4, 6, 2, 8. एमसीक्यू आ सकता. All the cardinal points of an optical system present at number 1 optical center, optical axis towards the red, या ये रह सकता है कि टू दी फोकल पॉइंट या एट इंफिनिटी. तो अपने को समझ में आना कि कार्डिनल पॉइंट सबके सब कहाँ रहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको. ठीक है, समझ में आ रही बात? मैं बीच में एमसीक्यूज का भी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अपनी जो एग्जाम आप देते आए हैं, हालांकि रिटर्न एग्जाम थी लेकिन ऑनलाइन जो है तो गुज़िश्ता कुछ दिन से चल रही है अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से. तो अगर अभी भी ऑनलाइन होती है तो इस तरह की एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको. उनका नंबर कितना है ये एमसीक्यू आ सकता, कहाँ रहते ये आ सकता. isn't it? Focal points are situated on the other side of the
लेंस, ट्रू और फॉल्स। ये भी आ सकता कि फोकल पॉइंट जो है तो लेंस के एक साइड में रहते, यानी कि ऑब्जेक्ट साइड में एक, और इमेज और ऑब्जेक्ट साइड समझती क्या आपको? ऑब्जेक्ट साइड किसको बोलेंगे, इमेज साइड किसको बोलेंगे? डू यू नो? क्या बता दूं एक बार वो भी? ऑब्जेक्ट साइज किसको बोलेंगे, इमेज साइड किसको बोलेंगे? देखिए ये लेंस है अपनी, बराबर है। ये क्या है लेंस का? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज यहां रहती, तो जहां जो साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के, आप उसको क्या नाम से पुकारेंगे? ऑब्जेक्ट साइड। और जो साइड में इमेज है वहां जो पॉइंटर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? इट इज इमेज साइड। ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत कम वक्त जो है तो एक ही साइड में रहेंगे उमूमन, अक्सर वो बेशतर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को है तो इमेज राइट साइड को रहेंगी। किसके? अपने साइन कन्वेक्शन देख के आए ना, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। हुआ क्या अपना ये? डू यू रिमेम्बर? जैसा कार्टेशियन आपकी तरसीम रहती क्या, ग्राफ साथ? हाँ सर। ग्राफ रहता ना, ग्राफ तरसीम। हाँ। तरसीम में क्या रहता? राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव। तो आपके ग्राफ में जैसा आपको दिया हुआ रहता 1 1, तो क्या समझते आप कि यहाँ की भी कीमत 1, यहाँ की भी कीमत 1, 1 माइनस 1, तो क्या मतलब कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे तो नीचे आते आप। मालूम है ना आपको ये कि जब भी तरसीम उतारते पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड में रहती है एक्स एक्सिस के, निगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड में रहती, ठीक है? तो वैसे आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इमेज साइड बोले तो जो साइड में इमेज रहेंगी वो साइड कहलाएंगी या इमेज साइड, और जो साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा वो साइड या वो बाजू क्या नाम से पुकारी जाएगी इसके आगे? ऑब्जेक्ट साइड। और अक्सर वो बेशतर इन मेनी ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टू द आइदर साइड ऑफ लेंस। इतना समझा? आगे चलूं? यस सर। चलिए अब अपन एक एक कितने टोटल कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं? चौथी मर्तबा समझा रहा हूं लास्ट पीरियड से, कितने हैं? 6। कौन कौन से? 2 फोकल पॉइंट्स, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड 2 नोडल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये कौन कौन है, कहाँ है, देख लेंगे अपन। फोकल पॉइंट्स, पहले तो फोकल पॉइंट्स कितने हैं उनकी एक जनरल डेफिनेशन क्या है? फोकल पॉइंट्स आर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स lying on the principal axis of a lens or lying on the principal axis of the optical system। क्या कैसे हैं ये पॉइंट्स? कॉन्जुगेट समझता है क्या आपको? मैथमेटिक्स की टर्म है, यानी कि एक दूसरे के जैसे, एक पॉजिटिव में तो दूसरा वैसी, मगर कहाँ खाली नेगेटिव नेगेटिव में, जैसा रहता है 1 - 1, 2 - 2। तो वैसा ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं? फोकल पॉइंट्स कितने रहते हैं? फोकल पॉइंट्स अभी पढ़ के आए कितने? 2। कैसे हैं? पेयर है कि सिंगल है फोकल पॉइंट, जोड़ी है। कैसे है लेकिन जोड़ी में भी? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। कहां पर रहते? लाइंग रहते हैं, पड़े हैं कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। अगर आपको कोई पूछे कि फोकल पॉइंट्स ऑफ ए ऑप्टिकल सिस्टम आर, क्या है? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब फर्स्ट फोकल पॉइंट कौन सा रहेगा? मिसाल के तौर पर अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो फर्स्ट फोकल पॉइंट इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइट सिस्टम such that when the beam of light passing through it rendered parallel to the principal axis। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, यहां से लाइट निकल रही, ठीक है, जा रही लाइट, देखिए आपको लाइट यहां से जाती हुई, ये पॉइंट है। कहां पे है पॉइंट? ये मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहां से लाइट रेज निकल रहे, ये लेंस है समझो, ये या 2 लेंस या 1 लेंस है, यहां से लेंस होने के बाद लाइट रेज कहां जा रहे? रिफ्रैक्ट हो रहे और पैरेलल जा रहे कि नहीं एक्सिस को? यस सर। तो जिस पॉइंट से लाइट रेज डिस्पर्स होने के बाद पैरेलल निकलते, वो पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है क्या कहलाएगा?
First focal point. फोकल पॉइंट, या इसके कॉन्ट्रेरी अगर डाइवर्जेंस के उसमें बोलने का है कॉन्केव लेंस में, तो द लाइट रेज फ्रॉम विच द लाइट रेज आर पैरेलल बट आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड मूव ईच अदर फ्रॉम द अदर साइड, यानी कि वो पॉइंट जहां से लाइट रेज एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो रहे बल्कि एक दूसरे के कैसे हो जा रहे, जुदा हो जा रहे, वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्या आपको और एक बार रिपीट करता हूं, द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द ऑप्टिकल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए ऑप्टिकल सिस्टम सच दैट फ्रॉम दैट पॉइंट लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव्स इन ए पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ गई बात? यानी कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से लाइट रेज रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसे जाते, पैरेलल, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, First focal point. फर्स्ट फोकल पॉइंट। वो भी नहीं समझ रहा तो और आसान बोलता हूं कि when a point on the principal axis at which light rays after refraction meet each other is called as the first focal point. कन्वर्जिंग लेंस अगर रही तो पैरेलल लाइट रेज जो कहीं से भी आ रहे ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्शन के बाद कहां आके मिलते, ऐसी लेंस रहती ना, ये लेंस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो लाइट पैरेलल लाइट रेज जो कि कहां से आ रहे ऑब्जेक्ट से, जो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है कहीं तो भी इंफिनिटी में, रिफ्रैक्शन के बाद कहां के मिल रहे हैं सब, आर यू देयर? Hello, sir. सुनिए आ रहा? Yes, sir. ओके, तो क्या बोल रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था अभी? First focal point. स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? स्क्रीन दिख रहा आपको? नहीं नहीं, सर। sir. ठीक है, अब दिख रहा? Yes. दिख रहा सर। यस, ओके। तो मैं आपसे क्या बता रहा था आपको अभी कि फर्स्ट फोकल पॉइंट की डेफिनेशन, कि तो फर्स्ट फोकल पॉइंट कहां पर रहता, प्रिंसिपल एक्सिस पे। किसको बोलते, वो पॉइंट जिसके ऊपर से लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल जारी, वो भी फर्स्ट फोकल पॉइंट। या अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो वो पॉइंट जहां से लाइट रेज एक दूसरे से जुदा हो जा रहे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट, and it will be denoted by the symbol generally F1। समझा क्या? या सर अमर? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे चलो, सेकंड फोकल पॉइंट, इन्हें भी कहां रहेगा, सेम डेफिनेशन, कहां रहता है ये जनरली, एक्सिस पे रहेगा, लेकिन ये कब रहेगा, it is the point on the principal axis of the lens of the optical system such that beam of light traveling parallel to the axis of the optical system after refraction through it, it is called as second focal point. It is denoted by the symbol F2। खाली रिफ्रैक्शन और डाइवर्जेंस के वक्त, या और उसकी अगर अल्टरनेट डेफिनेशन देने का तो सेकंड फोकल पॉइंट F2 कहां रहेगा, इन्हें अगर फर्स्ट फोकल पॉइंट अगर इधर है ऑब्जेक्ट साइड में, तो सेकंड फोकल पॉइंट कहां रहेगा, हमेशा कौन से साइड में रहेगा, इमेज साइड। इमेज साइड में रहेगा। हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के तरफ अगर समझो फर्स्ट फोकल पॉइंट है तो इमेज के तरफ सेकंड फोकल पॉइंट है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। ऐसा लगेगा आपने को कि ऑब्जेक्ट की इमेज है, फर्स्ट फोकल पॉइंट की इमेज, जैसा कि इधर अगर मैं ये यहाँ पर फिर एक बार अगर आपको उतार के बताऊं यहाँ पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इमेज है, इधर अपना जो है तो ऑब्जेक्ट है, इधर उसकी फोटो उतरी, ऐसा लगता है कि F1 और F2 दोनों जो है तो F1 अगर ऑब्जेक्ट है तो F2 उसकी इमेज है, ऐसा लगता, यानी कि एक्चुअल में क्या है, लेकिन F2 सेकंड फोकल पॉइंट is an image point on the principal axis of an optical system for which object lies at infinity। यानी कि ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट कहीं तो भी इंफिनिटी पे है। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस
अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एट F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, और उसके अलावा उसके बरक्स कॉन्केव लेंस में क्या होगा, ए पॉइंट पैरेलल टू द रेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड एज द सेकंड फोकल पॉइंट। आया समझ में आपके बात? दोनों भी एक जैसे रहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है तो यहाँ पर है, तो दूसरा जो है तो कहाँ रहता, इमेज साइड में रहता। पहला जगह इमेज साइड में है तो दूसरा ऑब्जेक्ट साइड में रहेगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट है कि जहां से लाइट रेज एक तो आकर मिलेंगे, यानी तो वहां से क्या होंगे, डाइवर्ज। वो पॉइंट को क्या क्या नाम से पुकारना आपने, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट की जगह दिख गई क्या आपको कहीं? तो फिगर देख सके आप, कहीं बता दिया मैंने फिगर में, ये रे डायग्राम बोलते, इस तरह का जो उतारा कि मैंने, इसको क्या नाम से क्या बोलते, इस तरह का जो दिख रहा है ये पहली लेंस, ये दूसरी लेंस, ये लाइट आके इधर से गिर रही, ये फर्स्ट सेकंड फोकल पॉइंट की जो तो जगह बताए हमने आपको, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट की जगह बताए। इस तरह के रे डायग्राम उतारना पड़ती है, अगर आपको समझो एग्जाम, अगर रिटर्न एग्जाम होती है तो इस तरह की फिगर्स उतारना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो रे डायग्राम है, ये रे डायग्राम पे आपको F1 और F2 नजर आ गए, तो दोनों के दोनों कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। आगे बात समझ में? चलो आगे, कितने हो गए फिर फोकल पॉइंट्स? 2 हो गए। अब प्रिंसिपल पॉइंट्स, प्रिंसिपल पॉइंट्स पढ़ने के वास्ते कंसीडर कीजिए कि लेट अस कंसीडर दैट L1 एंड L2 आर टू लेंसेस। अपने को क्या देखने का, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम या ऑप्टिकल सिस्टम देखने की ना। चलिए, लेट L1 एंड L2 आर टू लेंसेस। ये दो लेंसेस का क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट अस कंसीडर दैट AB इज द इंसिडेंट लाइट रे। फर्ज कीजिए कि ये A और B के ऊपर, ये जो L1 और L2 के ऊपर एक लाइट रे, क्या नाम से गिना रहे लाइट रे को हम, AB। ये देखो, ये मेरा कर रही, बीच में का सी मत बोलो, AB ये क्या है, लाइट रे है। किसके ऊपर गिर रही आके, लेंसेस के ऊपर गिर रही। ये दोनों लेंसेस का मजमुआ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा ही बताया, ऐसे बताया। ठीक है, लाइट रे कैसी है जी, ये AB प्रिंसिपल एक्सिस को, जोर से बोलिए, पैरेलल, बराबर है। ये पैरेलल लाइट रेस AB लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही, और कहां पे से पास हो रही, F2 में से पास हो रही कि नहीं? जरा आवाज नहीं आ रही मुझे, गर्ल्स की थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। सुने आ गया आपको? लेट अस कंसीडर दैट AB इज द इंसिडेंट लाइट रे। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दिस लाइट रे get refracted or emergent and passes through the second focal point F2। बराबर है क्या? बराबर बोल रहा हूं मैं? हाजी साहब, तो अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। AB क्या है, इंसिडेंट लाइट। AB क्या है, इंसिडेंट लाइट। BD क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट। ये इंसिडेंट, और लेंस में से पास होने के बाद रिफ्रैक्टेड, उसको दूसरा क्या नाम है, इमर्जेंट। क्या नाम से पुकारना उसको, इमर्जेंट। हाँ, तो ये AB इंसिडेंट और BD इमर्जेंट। इमर्जेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब इंसिडेंट लाइट जो है AB, इसको मैं अगर ऐसे डॉटेड लाइन से आगे आगे लेके जाऊं और यहां मिलाऊं, और ये इमर्जेंट रे है, इसको भी जो है तो ऐसा पीछे बैक साइड में लेके जाके थियोरेटिकली आकर मिलाऊं, तो इंसिडेंट रे और उसकी इमर्जेंट रे एक दूसरे को काम और खता करते जी, बी पर कर रहे कि नहीं, बी पर। दैट मींस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंस, द इंसिडेंट रे AB एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे, किसकी इमर्जेंट रे, दूसरे की नहीं, किसकी, इंसिडेंट और इमर्जेंट समझता क्या आपको? बेटा इंसिडेंट और इमर्जेंट समझता क्या, बोलिए मुझे। ये देखिए, ये लेंस, ये एक्सिस, ये क्या, इंसिडेंट रे,
बराबर है क्या? बोलिए मुझे। यस सर। अब क्या बोल रहा मैं इसको, क्या आपने को क्या डेफिनेशन मालूम है कि इसके ऊपर इंसिडेंट हुई लेंस के ऊपर, तो लेंस के ऊपर इंसिडेंट होते क्या होता उसका? अभी तक नॉलेज क्या बताता कि जब लाइट लेंस के ऊपर जाती तो क्या होता उसका? रिफ्रैक्ट होते रिफ्लेक्ट होकर सीधा जाती क्या हो? ऐसा जाती नहीं, क्या? कर्व हो जाती। क्या ऐसा हो गई? आ गया समझ में? यस सर। इंसिडेंट रे बीडी, ए बी इंसिडेंट रे, और बीडी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बोलो, या उसको दूसरा क्या नाम है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ठीक है। अब ये इंसिडेंट, ये इमर्जेंट रे को थोड़ा थोड़ा ऐसा पीछे ऐसा प्रोड्यूस करे, ये देखो कर रहे क्या ऐसा पीछे, हालांकि यहां से इफेक्ट हुई लेकिन ऐसा ऐसा पीछे प्रोड्यूस करे, और इंसिडेंट रे को भी थोड़ा ऐसा आगे ला डॉटेड लाइन से, तो ये दोनों आगे एक दूसरे को काम कौन खाता कर रहे हैं? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पे। वो पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसा, तो इन्हें जाके जो तो प्रिंसिपल एक्सिस को काम कौन खाता कर रहा? पॉइंट एच पर, H2 पर। H2 पर। तो नाउ द plane which is passing through this point of intersection of the incident ray and its conjugate corresponding emergent ray and perpendicular to the axis is called as the second principal plane, and the point of intersection of second principal plane with the axis, कौन सा है point of intersection second principal plane का axis के साथ? H2 is called as second principal point. समझ में आया? और एक बार रिपीट करता हूं, इंसिडेंट रे, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे, BD इमर्जेंट रे। हाँ, दोनों को क्या करने का? थियोरेटिकली इमर्जेंट रे को बैक साइड में प्रोड्यूस करने का डॉटेड लाइन से, इंसिडेंट रे को भी डॉटेड लाइन से प्रूव करने का। ये दोनों आगे एक दूसरे को कहां मिलते हैं? पॉइंट बी पर। ये बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, करेंगे ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को कहां जाके खता करता? पॉइंट H2 पर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे आपने, प्लेन ड्रॉ करे ना ये BH2, यस सर। तो ये द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, इज कॉल्ड एज second प्रिंसिपल plane, and point of intersection of this second principal plane with किसको, किसके साथ point of intersection इसका? with principal axis is called as second principal point, denoted by symbol H, कैपिटल ये H2। आ गया समझ में? यस सर। सेकंड वन। अब समझो ऐसा नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कंसीडर द अनदर इंसिडेंट रे F1C, इफ वी कंसीडर रे F1C, कहां से पास हो रही है F1C? फर्स्ट फोकल पॉइंट में से पास हो रही है नहीं? फर्स्ट, यस सर। फर्स्ट फोकल पॉइंट में से पास होने वाली इंसिडेंट रे क्या है? F1C। कहां पर इंसिडेंट हो रही? लेंस के ऊपर। लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद इसका क्या होना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद इन्हें कैसी जाएंगी? कर्व स्ट्रेट, गई के पैरेलल, कर्व जाएंगे ना, गई के सीधी पैरेलल। यस सर। अब इसकी जो पैरेलल रेज है F1C पासिंग थ्रू F1, इट्स इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द एक्सिस, है के पैरेलल टू द एक्सिस, गई के पैरेलल टू द एक्सिस, गई ना इसी? यस सर। ये जो इमर्जेंट रे है पैरेलल जो गई, उसको अगर बैक साइड में ऐसा मैं प्रोड्यूस करूं, यहां लेकर आऊं, और ये इंसिडेंट रे को भी यहां प्रोड्यूस करूं, तो F1C की इंसिडेंट रे और उसकी पैरेलल इमर्जेंट रे कहां खता करते एक दूसरे को आके? पॉइंट C पर। C पर। अब उस C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता मैं, ये ड्रॉ करा CH1, ये ने जो है तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां खता करती है आके? H1 पर, पॉइंट H1 पर। ये जो CH1 है इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। Point of intersection of this first principal plane with the principal axis is called as first principal point, which is denoted
symbol Small h1. H1. There the H1 is first principal point and H2 is Second principal point. second principal point. कैसे है दोनों? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट है क्या नहीं? कॉन्जुगेट किस बुनियाद पे बोलना अपन ने कि भाई अगर ये बीच में से इक्विवेलेंट लेंस अगर जारी होंगी तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में एक H1 H2 यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है. H1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू H2 और ऐसा H2. ऑब्जेक्ट है. आपसे रिक्वेस्ट है कि माइक और कैमरा बंद रखिएगा. अमर प्लीज, आर यू गेटिंग मी प्लीज बेटा? All of you are requested, all of you, because very important thing I am going to, because your examinations are probably in the month of July. Have you seen the circular of Marathwada University, please? Girls section, boys, Saad, Momin, Afifa, all of you. सुना क्या आपने कि जुलाई के महीने में एग्जाम हो सकती है आपकी सेकंड सेमेस्टर की? नहीं सर. हाँ, तो probably your first second term examination will be conducted in the last week of July. तो वैसी सूरत में आपके ये ऑनलाइन लेक्चर ये मजाक या दिल लगी के लिए नहीं ले रहे हम, बल्कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी का पार्ट है. वरना आप ये समझते होंगे कि लॉकडाउन में वो भी खाली बैठे हुए, हम भी खाली बैठे, चलो मजाकी तौर पर जाकर अपन लेक्चर अटेंड करेंगे. ऐसा नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब यही आपका सिलेबस है, इसमें से जो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं और एमसीक्यूज की कॉपी भी वही आदमी कर सकेगा जिसको थोड़ा बहुत कुछ समझे. तो आप थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा प्लीज. विल यू कोऑपरेट में प्लीज? साद, उमीन, अफीफा, मलिक, अम्मार, फैज, ऑल ऑफ यू प्लीज. यस सर. तो क्या कह रहा था मैं? एक्चुअल में देखे तो पूरी बात ये कैसी है जी? इमेजिनरी बात है कि नहीं? थियोरेटिकल है ये. ऐसा पॉइंट आप बताइए. Yes, sir. देखो देखो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है, ऐसा नहीं. तो अगर आपको अगर आप डेफिनेशन बोलना है, एक बार रिपीट करूं क्या कि समझ में आया? रिपीट करो सर. चलिए, let us consider that L1 and L2 are two lenses. कैसे रखे हुए एक दूसरे को? ये कोएक्सियल है क्या नहीं जी? ये बोल सकते हैं कि मैं Yes, sir. L1 L2 कोएक्सियल है. कोएक्सियल से क्या मुराद? जिनका एक्सिस एक है क्या? दोनों का एक्सिस एक ही. यस सर. अब ए बी एक लाइट रे है जो कि एक्सिस को पैरेलल है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही लेंस की सिस्टम. ये दोनों का कॉम्बिनेशन बीच में है, समझो आप. हाँ, ये दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दोनों की कहां समझो आप कि यहाँ बीच में है. दिख रहा है ये है, समझो. लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, क्या होगा? इंसिडेंट होने के बाद किधर से जाएंगी वो? रिफ्लेक्ट होंगी, डाइवर्स हो जाएगी. ये बीडी को अगर यहाँ से पास होने वाली लाइट रे को ऐसा 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 करके अगर मैं बैक साइड ले जाऊं और इंसिडेंट रे को भी ऐसा 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 करके यहाँ लेके जाऊं, तो इंसिडेंट रे और उसकी करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे एक दूसरे को कहाँ मिलते आके? पॉइंट बी के ऊपर. ठीक है या सर? Yes, sir. और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो कहाँ जाके जो है तो इंटरसेक्ट करता प्रिंसिपल एक्सिस को? H2 के ऊपर. So a perpendicular drawn from the point of intersection of the incident ray and its corresponding emergent ray, which is perpendicular to the principal axis, is called as the second principal plane. And point of intersection of second principal plane with the axis, principal axis of the lens is called as second principal point. Am I correct? समझ में आ गई बात आपके? Yes, sir. उसी तरह या नहीं तो पॉइंट जो है तो लाइट रे यहाँ से निकलेंगी F1 से, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट से जाएगी. कहां पर इंसिडेंट होंगी? सी पर. सी से जो है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगी. अपन पढ़ के आए ना कि अगर पैरेलल यहाँ से निकल रही तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी होंगी, और यहाँ से निकल रही तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगी. इतना समझे क्या आप? आपको अगर नहीं भी समझा तो Yes, sir. पूछ सकते मेरे से. ठीक है, तो ये लाइट रे यहाँ से पैरेलल गई, इसको भी अगर प्रोड्यूस करे बैक साइड में तो दोनों आके कहां मिलेंगे? सी पे. बराबर है. सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे सी H1, तो ये फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन होंगी. फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस को कहां काटेंगी? कहां पे आके मुनखता करेगी? फर्स्ट प्रिंसिपल H1 पर. the principal axis at point H1. H1. And this point H1 is called as
फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ तक प्रिंसिपल पॉइंट कितने हो गए? 2. तो H1 एंड H2 आर फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। कैसे दिखते हैं? दिखने में ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसकी इमेज है। इमेज है। इमेज है. पॉइंट हुए कि नहीं? फिर ये ऐसा लग दोनों एक अलग अलग बाजू में है क्या नहीं? एक जो है तो लेंस के लेफ्ट साइड में है, एक लेंस के राइट साइड में. राइट साइड में है, तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स है क्या नहीं? कहाँ पे है? यस सर. प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस. ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी की इमेज है। इमेज. कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट. कितने हो गए? 6 में से 4. समझा आपको यहाँ तक? आपके पास यस सर. इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझा है तो कोई ऐसा शर्मने की बात नहीं है। He or she may please contact me on telephone or WhatsApp any other sort and ask me to repeat. I will repeat them online. उनके अकेले के लिए एक मैं जो है तो लिंक बना के मुनासिब टाइम पे फिर एक बार रिपीट करूंगा। या अगर लड़का है उसके लिए मुनासिब है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो आके मुझसे कॉलेज में मिल सकता, उसके लिए फिर मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, चलो आगे। यस सर। चलिए, नोडल पॉइंट्स, ये भी किसके ऊपर रहेंगे? इसकी भी डेफिनेशन सुन लीजिए। नोडल पॉइंट्स आर द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? बोलता आपको पहले, फिलहाल खाली इतना समझ लीजिए कि नोडल पॉइंट्स भी क्या है? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स है। क्यों बोल रहे हैं इनको नोडल कॉन्जुगेट पॉइंट्स? कि ऐसा लगता कि लाइट इंसिडेंट लाइट रे इज गोइंग टूवर्ड द वन पॉइंट ऑफ दिस वन। देखिए N1 और N2 जो है तो क्या है? नोडल पॉइंट्स है। किसके ऊपर है जी दोनों? ये कहाँ है इनका मैले वाकू कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस पे है। और दिखता क्या कि लाइट रे इज इंसिडेंट टू वन ऑफ दिस पॉइंट N1 एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन सीम्स टू कम्स फ्रॉम द सेकंड पॉइंट N2। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? ये पूरा अगर लेंस पकड़ू मैं तो ये क्या है जी? ये इंसिडेंट रे है। और ये क्या है उसकी? रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे है। तो अगर आप पॉइंट के नुक्ते नजर से देखें तो कैसा लगता है कि इंसिडेंट रे किसके तरफ जा रही? N1 और प्रिंसिपल रिफ्रैक्टेड, एक्सिस की तरफ. हाँ N1 के तरफ जा रही। और रिफ्रैक्टेड होके बाद में कहां से निकलती हुई दिख रही? N2 से. N2 से। यानी कि ऐसा लगता है ये दो इमेजिनरी पॉइंट जो है तो एक्सिस के ऊपर है, जिस पर ऐसा लगता है कि if the ray is directed towards the one of the first nodal point N1, then after emergent are they coming from the same point N2। और ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है कि नहीं? है कि पैरेलल? इसको ऐसा लंबा लिया मैंने, इसको ऐसा लंबा। यस सर. तो दोनों पैरेलल है कि कभी एक दूसरे को काटेंगे? नहीं सर, पैरेलल। नहीं सर, पैरेलल. तो ये दो पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इस तरह से कि इंसिडेंट रे एक के तरफ डायरेक्ट होती और रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे से निकलते हुए दिखती। क्या बोल रहा मैं उर्दू में? कि लाइट रे एक के तरफ डायरेक्टेड रहती और रिफ्रैक्शन के बाद उसके दूसरे पॉइंट से क्या होती हुई दिखती? निकलती हुई दिखती। ये दोनों पॉइंट कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे. ये दोनों पॉइंट का मजमा इस कॉल्ड एज नोडल पॉइंट्स। समझ में आ रही क्या बात? फिर एक बार सुन लीजिए। नोडल पॉइंट्स आर द पेयर ऑफ conjugate points which are present on the principal axis. They are denoted by the symbol N1 and N2. Nodal points lie on the principal axis such that if the ray is directed towards one of this point N1, बराबर है, then यस सर. the ray emerges from N2 parallel to itself and the distance between two nodal point, ये दोनों N1 और N2 के दरमियान उतना फासला रहेगा जितना फासला H1 और H2 के दरमियान है। ये जितना जाविया है उतना जाविया ये है। ये H1 N1 जितना फासला है उतना फासला H2 N2 है। यानी कि H1 N1 H2 N2 is equal to there, therefore it is called as it is hangy। और ये जितना जाविया है उतना जाविया ये है। इसका मतलब इसका एंगल सेम है, यानी कि इंसिडेंट रे और पैरेलल इमर्जेंट रे का जाविया कैसा है? सेम है। इस वास्ते इसको बोलते हैं हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आई क्या बात?
अच्छा दोनों एक ही साइड में है क्या जी? यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट लेंस है तो दोनों n1 n2 एक ही साइड में है, नहीं सर। अलग अलग साइड में है. No sir, different side में. If the medium on the both side of the optical system is same, then respective nodal point coincide. एक खैर वो बाद में देखेंगे. फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग साइड में है और दोनों एक जैसे दिखते हैं. ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है. ऐसा लगता है कि इधर सामने बिल्कुल आईना. यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक लाइन ड्रा करूं यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि ये देखो, मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रा करूं कि ये इक्विवेलेंट लेंस है यहाँ की, तो ऐसा लगता है कि इधर पूरा ऑब्जेक्ट, इधर पूरी इमेज. H1 उसकी इमेज, H2, N1 उसकी इमेज, N2. ये इंसिडेंट रे उसकी इमेज दिख रहा है क्या? साथ फैजा. इंसिडेंट रे उसकी इमेज ये ऐसा दिखता है कि नहीं, बिल्कुल आईना, सिमेट्री जो सामने है Yes, sir. उसका. हाँ, तो कितने हो गए फिर पॉइंट? देखो ये फिगर में देखो, F1 बोलो, 2 मिनट में बोलो प्लीज. F1 फर्स्ट Yeah, प्रिंसिपल focal point. First फोकल पॉइंट. F2 हाँ first Second second focal point. P1 ये फिगर में, P1 and P2. First principal point, हाँ, second principal point. N1 N2. First nodal point First or and second nodal. second nodal point. How many points now? 6 6 points. points. And this is called as the cardinal points of a refractive. तीनों को मिला के फिगर अगर एग्जाम में उतारने की बारी आती है, अब तो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन में आएगी, लेकिन इट इज कॉल्ड एज द सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट. आगे बात समझ में? सो दिस इज द अवर टुडे चैप्टर. और इसके ऊपर जो है नोडल पॉइंट्स के बारे में और मजीद कर हम लेंगे. So we shall stop here today. Thank you for joining me. Next period we will take on next Monday. ठीक है? कितने बजे लेने का हम बाद में डिसाइड करेंगे. Thank you. Have a nice time. May I stop? Yes, sir. Oh. Very nice.